اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت 11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ مراکز کے باہر دفعہ 144 نافذ ہے۔ ایم سی کیوز کے لیے آپٹیکل مارک ریکگنیشن شیٹ کی فراہمی کی گئی ہے۔ چیئرمین انٹر بورڈ ڈاکٹر سعید الدین نے پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ ہونے کی تردید کر دی۔ سوشل میڈیا پر وائرل پرچہ جعلی قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا کی خبروں پر کان نہ دھرنے کی تاکید کر دی ہے۔ بجلی کی عدم فراہمی کے باعث طالب علم گرمی میں پرچہ حل کرنے پر مجبور ہیں۔ بیشتر سرکاری کالجز میں بجلی غائب ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندے سید زبیر راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی زبیر، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، اعلیٰ ثانوی بورڈ کے تحت امتحانات جو ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، لیکن کراچی کے بیشتر سرکاری کالجز ایسے ہیں جہاں پر بجلی کی عدم فراہمی کے باعث جو طالب علم ہیں ان کو پرچہ دینے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ اس وقت بھی میں ایک سرکاری کالج میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی جو پس منظر ہے، اگر میرے کیمرامین شاہزیب اگر آپ کو کیمرے کی آنکھ سے ملاحظہ کرا سکے کہ یہاں پر طالب علم جو ہیں سخت ترین گرمی میں حفظ کے باعث جو ہے یہاں پر پرچہ دینے میں مجبور ہیں، کیونکہ الیکٹریسٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو ان طالب علموں کو کوریڈور میں بٹھایا گیا ہے اور یہاں پر یہ جو طالب علم ہیں اپنا پرچہ حل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یقیناً طور پہ چیئرمین انٹر بورڈ کی جانب سے کہ الیکٹرک کو درخواست بھی دی گئی تھی کہ وہ تعلیمی ادارے جہاں پر امتحانی مراکز جہاں پر پیپر کے دوران جو ہے بجلی نہ کرنے کی گزارش کی گئی تھی انٹر بورڈ کی جانب سے، لیکن یقیناً کہ الیکٹرک کے بھی دعوے دھرے کے دھرے رہ چکے ہیں۔ ان طالب علموں کا آج بایولوجی کا پرچہ ہے فرسٹ ایئر کا، اور یہاں پر طالب علم جو ہے سخت ترین گرمی میں حفظ کے باعث یہاں پر پرچہ دینے پر مجبور ہے۔ تو یقیناً طور پہ یہ بورڈ کو بھی دیکھنا چاہیے اس معاملے کو، اور کہ الیکٹرک کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک تو ویسے ہی طالب علموں کے سر پر جو ہے بڑا سٹریس ہوتا ہے، دوسرا انٹر کے امتحانات کچھ بالکل بھی آسان نہیں ہوتے، بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن اس سخت ترین گرمی میں بھی یہ جو طالب علم ہے اپنی محنت حل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ سید زبیر راشد ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں بندش کا دورانیہ 12 گھنٹے تک جاری ہے۔ شہری کہتے ہیں دن بھر بجلی کی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے کہ الیکٹرک حکام نے 15 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی تردید بھی کر دی ہے۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کی ابتر صورتحال، مختلف علاقوں میں دورانیہ 12 گھنٹے تک جا پہنچا۔ لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی جانے اور آنے کے کوئی اوقات کار نہیں۔ پہلے تو بالکل ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب سے شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں نا، جب سے بلائٹ ایسی جا رہی ہے کہ لوگوں کا روزگار بھی ختم ہو گیا ہے اور نیند بھی ختم ہو گئی ہے، آرام بھی ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ لائٹ تو ہمارے پاس 4 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھی چلی جاتی ہے۔ کہ الیکٹرک انتظامیہ کے مطابق شہر میں اس وقت 2900 میگا واٹ بجلی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس وقت کے الیکٹرک کو 300 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے، جس سبب شہر کے تمام تر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ سندھ حکومت بازی لے گئی۔ بجلی بچت کے لیے وفاقی کابینہ کے فیصلے پر سب سے فیصلہ سازی کا عمل مکمل کر لیا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے تمام کاروباری مراکز رات 9 بجے، شادی ہال رات 10:30 بجے اور ہوٹل ریسٹورنٹ رات 11 بجے بند کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ توانائی بچاؤ مہم میں سندھ بازی لے گیا۔ بجلی بچت کے لیے وفاقی کابینہ کے فیصلے پر سب سے فیصلہ سازی کا عمل مکمل کر لیا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے تمام کاروباری مراکز رات 9 بجے، شادی ہال رات 10:30 بجے، ہوٹل رات 11 بجے بند کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق سندھ بھر میں تمام بل بورڈ کی لائٹس رات 9 بجے بند کی جائیں گی۔ 1 ماہ تک یہ پابندیاں جاری رہیں گی۔ میڈیکل سٹور، فارمیسی، پیٹرول پمپ، بیکری اور دودھ کی دکانیں پابندی سے مستثنا ہوں گی۔ اسپتال کی حدود میں قائم میڈیکل سٹور پر بھی پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ آل انجمن تاجران سندھ نے حکومت کے احکامات کو مسترد کر دیا۔ صدر جاوید قریشی کہتے ہیں کمشنر آفس میں ہونے والے اجلاس میں مارکیٹس میں لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ابھی تجارتی مراکز میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ہمیں کم از کم 10 بجے تک کا ٹائمنگ دی جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط تھی کہ ہمیں جو کمرشل فیڈر ہے اس پہ 0 لوڈ شیڈنگ کی جائے، لیکن اس کے برعکس لوڈ شیڈنگ آج 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور اس کے بعد یہ رات 9 بجے مارکیٹنگ بند کرنے کا جو فیصلہ ہے، ہم سندھ گورنمنٹ کا یہ فیصلہ مسترد کرتے ہیں۔ شادی ہالز مالکان نے بھی سندھ حکومت کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ صدر شادی ہالز ایسوسی ایشن رانا رئیس کہتے ہیں کہ شادی ہالز کا وقت 10:30 بجے کرنا غیر سنجیدہ فیصلہ ہے۔ شادی ہالز کے اوقات رات 12 بجے تک کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ پنجاب کی بات کی جا رہی ہے، پنجاب میں کوئی یہ ٹائمنگ ابھی کی نہیں ہے، 18-20 سال پرانی ان کی پریکٹس ہے، اور کراچی کا جو سیناریو ڈائنامکس ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔
यहाँ ट्रैफिक इश्यूज़ हैं। अगर आप तमाम सेक्टर्स को एक साथ बंद कर देंगे, 9 बजे तमाम जो है ट्रेडर्स को बंद करते हैं, उसके बाद आप मैरिज हॉल्स को बंद करते हैं 10:30 बजे, रेस्टोरेंट्स को 11 बजे करते हैं, पूरा कराची वाइंड अप होता है, वो भी तकरीबन 9 बजे के बाद जब निकलेंगे तो पूरा कराची एक साथ ट्रैफिक की जद में आएगा, ट्रैफिक जैम होगा। उधर महकमा दाखिला सिंध के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने पर इलाका SHO को कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया। IG सिंध के हुक्म के बाद कराची पुलिस मुतहरिक हो गई। लांडी बाबर मार्केट और शहर भर में दुकानें बंद करा दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने गश्त करके खुली दुकानें जबरदस्ती बंद कराईं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि पुलिस महकमा दाखिला के हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद कराए। ज़िली SSPs महकमा दाखिला के हुक्मनामे पर अमल कराएं। हुक्मनामा ना मानने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। मारूफ एंकर आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम कराने का मामला है। आमिर लियाकत के बुरसा अदालत में पेश हुए। सरकारी वकील भी अदालत में पेश। अदालत ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त पर फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज जमाली से। जी मुमताज, मजीद बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की वजीर हुसैन मेमन की अदालत के बाहर। आज जहाँ पर डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम कराने से मुतल्लिक शहरी की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जहाँ पर आमिर लियाकत के बुरसा भी अदालत में पेश हुए, SHO ब्रिगेड भी जो है अदालत में पेश हुए, सरकारी वकील समेत दीगर फरीकैन जो है अदालत में पेश हुए। सरकारी वकील ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि आमिर लियाकत के बुरसा जो है ये नहीं चाहते कि आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम हो, ना ही उन पर किसी को शक है। बुरसा का यही मौक़िफ़ है कि वो मजीद जो है पोस्टमार्टम कराकर आमिर लियाकत की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। लिहाजा SHO जो ब्रिगेड है उन्होंने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। उनका यही मौक़िफ़ है कि डॉक्टर जो सर्जन है उनके मुताबिक जब तक जिस्म के अंदरूनी जो है हिस्से का जायजा नहीं लेते तब तक मौत के असल तय नहीं कर सकते। लिहाजा अदालत ने तमाम फरीकैन के दलाल सुनने के बाद दरख्वास्त जो है महफूज कर लिया है। बहुत शुक्रिया मुमताज जमाली अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने तलबा तशा कुमारी की दुहाई सुन ली। लियारी के शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज में दाखिला देने का हुक्म दे दिया। कॉलेज में 65% नंबर लाने वालों को दाखिला दिया गया। 84% नंबर के बावजूद नजरअंदाज किया गया। तालिबा का दरखास्त में दावा है मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने कॉलेज इंतजामिया को तलबा को MBBS फर्स्ट ईयर में दाखिले का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, लगा कीजिएगा। जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में MBBS के दाखिलों में मुबैना बेज़ाब्तगी का मामला है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की है। दरख्वास्त तिशा कुमारी की जानिब से दायर की गई, जिसका अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार करना था कि वो अहलियत रखती है और जो खाली नशिस्तें हैं उन पर उन उम्मीदवारों को दाखिले दे दिए गए हैं जिनके नंबर 65% थे, जबकि दरख्वास्त गुजार के नंबर 84% थे, लेकिन उनको महरूम कर दिया गया। लिहाजा एक तो दाखिला फौरी तौर पर देने का हुक्म जारी किया जाए, इसके साथ ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में होने वाली इन बेज़ाब्तगियों के खिलाफ तहकीकात का भी हुक्म जारी किया जाए। दौरान समाअत अदालत ने तमाम तर शवाहिद का जायजा लिया और उसके बाद ये करार दिया है कि चूँकि दरख्वास्त गुजार के नंबर उन उम्मीदवारों से ज़्यादा हैं जिनको दाखिला दिया गया है, लिहाजा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज इंतजामिया को ये हुक्म जारी किया गया है कि तिशा कुमारी को फौरी तौर पर MBBS फर्स्ट ईयर में दाखिला दिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने ये दाखिला देने के बाद आइंदा समाअत पर इस पर अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब। शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि महकमा तालीम में मजीद प्राइमरी स्कूल टीचर्स भर्ती करने का फैसला कर लिया। NTS टेस्ट में इजाफी नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती करने का फैसला किया गया है। महकमा स्कूल तालीम ने 8 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं महकमा तालीम में मजीद प्राइमरी स्कूल टीचर्स भर्ती करने का फैसला कर लिया गया है। NTS टेस्ट में इजाफी नंबर हासिल करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती करने का फैसला किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, कितने असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे और तरीक़ाकार क्या होगा? जी बिल्कुल, महकमा तालीम में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि महकमा स्कूल तालीम में IBA टेस्ट पास करने वाले यानी 40% नंबर हासिल करने वाले असातिज़ा को भर्ती करने के बाद में अब जो है NTS जिन्होंने टेस्ट पास किया 2013 में, उनमें जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो टेस्ट पास करने के बावजूद रह गए थे उनको भी महकमा स्कूल तालीम में जो बतौर प्राइमरी स्कूल टीचर्स के तौर पर भर्ती करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से खाली असामियों पर इन असातिज़ा को भर्ती करने के लिए महकमा स्कूल तालीम ने महकमा तालीम के माहिर के जो है अफसर को जो है कंसल्टेंट के तौर पर
कमेटी का सरबराह मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। ये कमेटी 8 रुकनी कमेटी है, जिसमें महकमा स्कूल तालीम के अफसरान और महकमा तालीम के रिटायर्ड जो मुलाजमीन है वो भी इसमें शामिल है। ये कमेटी उन मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का तयन करेगी जिन्होंने 2013 में NTA टेस्ट पास किया, 60% से ज्यादा नंबर हासिल किए लेकिन रह गए थे, उनको जो है महकमा स्कूल तालीम में भर्ती करने का फैसला किया। इन मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की नजरसानी की जाएगी। इनके तमाम तरह जो कागजात है वो उनकी छानबीन करके उसके बाद जो है महकमा स्कूल तालीम को रिपोर्ट दी जाएगी और महकमा स्कूल तालीम सिंध काबीना से मंजूरी लेने के बाद इन असातिज़ा को महकमा स्कूल तालीम में भर्ती करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोड़ियो। आपको बताएं कि आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह की मुश्किलात में इजाफा हो गया। समाजी तंजीम की जानिब से दानिया शाह के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत FIA को दानिया शाह के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। दरख्वास्त में FIA, साइबर क्राइम और दानिया मलिक फरीक बनाया गया है। इन दोनों को मजीद आपको बता रहे हैं कि आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। समाजी तंजीम की जानिब से दानिया शाह के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत FIA को दानिया शाह के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। दरख्वास्त में FIA, साइबर क्राइम और दानिया मलिक को फरीक बनाया गया है। नाजरीन को बता रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया दानिया शाह की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। NA 240 कोरंगी के ज़िमनी इंतखाब पर वोटों की दोबारा गिनती। तहरीक लब्बैक की दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक की दरख्वास्त मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वोटों की दोबारा गिनती के लिए TLP के उम्मीदवार ने दरख्वास्त जमा कराई थी। रिटर्निंग अफसर ने NA 240 अब्दुल रज़ाक के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद शुदा वोटों को दोबारा चेक कर लिया, जिसके बाद TLP उम्मीदवार ने मुस्तरद शुदा वोटों के दोबारा मुआयने और गिनती को मुस्तरद कर दिया। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक हल्के में 3 पोलिंग स्टेशनों पर शिकायत मौसूल हुई थी। तीनों पोलिंग स्टेशन पर हसास इंतखाबी सामान को कोई नुकसान नहीं हुआ। RTS फेल होने का इल्जाम शवाहिद के बगैर है। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कल मुझे भी गोली लगी लेकिन मैंने नहीं बताया ताकि सूरत हाल कशीदा ना हो। NA 240 में नाम निहाद इंतखाब हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन समेत सब नाकाम हुए। ये इलेक्शन हमसे छीना गया। मुस्तफ़ा कमाल का मजीद क्या कहना था, देखिए ये रिपोर्ट। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखालफिन पर बरस पड़े। NA 240 के ज़िमनी इंतखाब को फ्रॉड करार दे डाला। खुद को गोली लगने का इंकशाफ भी किया। ज़िमनी इलेक्शन को मुस्तरद करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि कल 8 मकामात पर MQM के लगाए गए लोगों को धांधली करते हुए पकड़ा। हम इस ज़िमनी इंतखाब के नताइज को नहीं मानते। जो इलेक्शन शुरू हुए तो हमने 8 जगहों पे रंगे हाथों वीडियोस के साथ MQM के लगाए हुए जो PROs थे और उनके वर्कर्स को बाकायदा कहीं डब्बे चुरा कर लेकर जाते हुए, कहीं बैलेट बॉक्स के पूरे थप्पों के साथ भागते हुए निकलते हुए, तो जाली वोट कास्ट कराते हुए हमने लोग पकड़कर वीडियोस के साथ हमने इंतजामियों को हमारे साथ में दिया। चेयरमैन PSP का कहना था कि एक कलदम जमात पर से पाबंदी उठाकर उसे खुली दहशतगर्दी की इजाजत दी गई। हमारे एक भी आदमी के पास हथियार नहीं थे। इस शहर में ये खिलवाड़ खेला जा रहा है। एक बैन जमात को दोबारा खुलवाकर उसको खुला लाइसेंस दे दिया गया कराची में आकर, जो उन्होंने लाहौर में किया, पंजाब में किया, उसको खुली इजाजत दे दी गई कि कराची में आकर वो दहशतगर्दी करें। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि गुज़श्ता रात उनके 40 से ज्यादा साथियों को घरों से हिरासत में लिया गया और उन्हीं के खिलाफ FIR भी काटी गई। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद ने भी NA 240 के ज़िमनी इंतखाब में बेज़ाब्तगियों की शिकायत कर डाली है। कहा कि इलेक्शन में बैलेट बॉक्स टूटे हुए बिखरे हुए थे। शिकायत पर 3 पोलिंग स्टेशन को सील भी किया गया। लांढी में अपनी रिहाइशगाह पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आफाक अहमद का कहना था कि तमाम फॉर्म 45 को कंपाइल किया तो नताइज में बहुत फर्क आया। 21 नंबर पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती की गई जिसमें पूरा एक बंडल मुस्तरद वोटों का निकला। मजीद कहा कि आज़ाद उम्मीदवार आफाक जमाल को मोमबत्ती से मुशाहबत वाला लाइटर का निशान अलॉट किया गया, जिस पर हमने एतराज़ भी किया। आफाक अहमद का मजीद कहना था कि महाजर नजरिया नाकाम नहीं हुआ, तमाम वोट महाजर नजरिए को मिले हैं। इस इलेक्शन से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है।
कुछ बात कर लेते हैं ईद उल अज़हा की तैयारियों के हवाले से। तो 3 हफ्ते बाकी रह गए हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए साहिब इस्तात मवेशी मंडियों का रुख करने लगे हैं। सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी में हज़ारों जानवर सज गए हैं, जहां बादल नामी सिब्बी के बछड़े के चर्चे हैं। लहीम शहीम सिब्बी के बादल से मिलवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार। जी बसीम, बादल का वजन क्या है और दाम क्या है इसके? बिल्कुल, इस वक्त मैं मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर बादल आ गया है और बादल छा गया है। इस वक्त आप मेरे अकब में देख रहे हैं ये बादल जो कि मारने के लिए जो है वो यहाँ पे मेरे पास आया है, लेकिन इसका वज़न जो है वो तकरीबन 35 मन का दावा कर रहे हैं और जो इसकी कीमत है 60 लाख रुपए। सिब्बी नस्ल के जानवर है जो कि गडाब से यहाँ पर लाया गया है। इसके आप नखरे और उसके तेवर देख सकती हैं कि कितने गुस्से में है और प्यार करने का भी मौका नहीं दे रहा। अपने रखवाले जो हैं इनके, उनको भी प्यार करने का मौका नहीं दे रहा। मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं भी हाथ फेर लूं, मैंने हाथ फेर भी लिया है, लेकिन ये बादल जो है वो इस वक्त यहाँ पे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि इसका कद आप देख सकती हैं कि तकरीबन 7.5 फुट के करीब इसका कद है। सिब्बी नस्ल के जानवर है, भारी भरकम जानवर है और 35 मन इसका जो है वो वजन का दावा किया गया है। इस वक्त मेरे साथ इसके रखवाले मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या बताएंगे आप, इसको कितने लाड से पाला है इसको, और इसकी पसंदीदा ग़िज़ा क्या है? राशिद, इसकी पसंदीदा राशन है जो चोखर है और अट्टी है और कुतर है और भूसा है और दूध भी पीता है। माशाल्लाह ये तीनों जानवर जो है इकट्ठे तकरीबन 1 माह में इनका 3 लाख का दूध होता है और ये हमारे पसंदीदा जानवर है और ये जागरानी केटल फार्म से आए हैं और जागरानी की पसंद है। ये कीमत कितनी है इसकी? कीमत इसकी 60 लाख है और जो वो दूसरा है ये बादल है इसकी 60 लाख रुपए और जो बबलू है इसकी 40 लाख रुपए। अभी इसकी डिमांड लग गई है 40 लाख, मगर हमारी जो डिमांड है वो 60 लाख है। जी बिल्कुल, इसकी डिमांड जो लगी है यानी कि बोली जो लगी है अब तक जो है वो 40 लाख रुपए लगी है और इसका वैसे तो दूध पिलाया जाता है इसको, लेकिन इसको अभी जो है वो तकरीबन डाला गया है। ये कुट्टी है, इसके साथ साथ भूसी है, जो कि अगर कहा जाए गलत नहीं होगा कि ये ग़िज़ा इनके लिए जिंगर या किसी कढ़ाई से कम नहीं है, क्योंकि ये हमने देखा कि जब डाला गया तो बड़े शौक से हमने इसको खाते हुए देखा। दोपहर का वक्त है तो इस वक्त बादल ने जो है वो लंच किया है कुट्टी का और इसके साथ साथ भूसी, और देखते हैं ये है कि किसके नसीब में बादल जाता है, क्योंकि अब तक जो इसकी जो बोली लगी है वो 60 लाख की लगी है, 40 लाख की लगी है, 60 लाख इसकी डिमांड की जा रही है। और ये मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है बबलू, शक्ल से भी मासूम और बबलू ही लग रहा है। ये इसकी कीमत जो है वो 40 लाख रुपए है। ताहम देखते हैं कि ये जो सिब्बी नस्ल के कीमती जानवर हैं किसके नसीब में आते हैं और कौन इनको खरीद के लेके जाता है। जी वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे और मिलवा रहे थे बादल से, जिसका कोई मोल नहीं है। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। सोहराबगढ़ पर वाक़या मवेशी मंडी में इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। पुलिस के साथ रेंजर्स की नफरी को भी तैनात किया गया है। मवेशी मंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर सैकड़ों की तादाद में CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। मवेशी मंडी इस बार बारिश से भी मुतासर नहीं होगी। सोहराबगढ़ की मवेशी मंडी में आने वाले अफराद के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। मवेशी मंडी की इंतजामिया के मुताबिक मंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर 300 के करीब CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जिन्हें मॉनिटरिंग सेल से मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। मंडी के अंदर पुलिस के साथ रेंजर्स के नफरी को भी तैनात कर दिया गया है। गेट के ऊपर सिक्योरिटी का और तमाम दरवाज़ों पर सिक्योरिटी का 3 लेयर्स में सिक्योरिटी है मंडी में, जिसमें अंदर एक इंटरनल सिक्योरिटी इंतज़ामिया की है, मंडी इंतज़ामिया वालों की होती है, उसके बाद पुलिस की लेयर है और मंडी के बाहर अतराफ में जो है वो पाकिस्तान रेंजर्स की सिक्योरिटी है, वो उसको कवर करते हैं बाहर। तर्जुमान मवेशी मंडी का कहना था कि इस बार मंडी मानसून बारिशों के पानी से भी मुतासिर नहीं होगी। पानी की निकासी के लिए इंतजामात कर लिए गए हैं। आरजी के लिए जो इंतजाम इन्होंने करते हैं वो पंपिंग मशीनें तैयार हैं बिल्कुल, जो पानी निकालने वाली होती हैं। ट्रैक्टर्स खड़े हुए, ट्रक खड़े में, जो डंपर्स होते हैं जिनके अंदर कचरा या मिट्टी या कीचड़ उठा के डाली जाती है। तो बारिशें अगर हुई तो उसका भरपूर इंतजामात हैं। पानी जैसे ही खड़ा होगा उसकी निकासी का इंतज़ाम फ़ौरन किया जाएगा। सोहराबगढ़ की मवेशी मंडी का रुख करने वाले अफराद फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात में अपने पसंदीदा जानवरों की खरीदारी बआसानी कर सकेंगे। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा जुनेद फिरोज, City 21।
एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान देखने में आया है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 126 पॉइंट्स इजाफे से 42,140 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक हफ्ते में 19 अरब रुपए की कमी हो गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, मजीद अपडेट कीजिए। स्टॉक मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट जो सामने आई है कि गुज़िश्ता हफ्ते जो वफाकी बजट के बाद स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल देखे गए थे और IMF की जानिब से वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को मरासत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था। हफ्ते के दौरान पेट्रोलियम मशीनों की कीमत बढ़ाकर IMF की सब्सिडी खत्म करने की शर्त से हुकूमत अमल दरामद को मुस्बत करार दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर भारी सब्सिडी खत्म करने पर मार्केट हफ्ते में मुस्बत जोन में आ गई। बजट में तनख्वाहदार तबके की इनकम टैक्स इजाफे में नजरसानी का मुस्बत करार दिया गया। एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में जो है 126 पॉइंट का इजाफा हुआ। 0.3% चढ़कर 42,140 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में देखा जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन 19 अरब रुपए घटकर 7,002 अरब रह गई है और एक हफ्ते में 26 अरब रुपए मालियत के 87 करोड़ शेयर का कारोबार किया गया। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा, एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 40 पैसे महंगा हो गया है, इस पे भी तफसीलात से आगाह कीजिए। जी हाँ, देखा जाए बढ़ता तिजारती खसारा बैरिंग कर्जों की अदायगी रुपए को कम तरीन सतह तक गिरा दिया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 40 पैसे महंगा हुआ है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 202 रुपए 35 पैसे से महंगा होकर 208 रुपए 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। एक हफ्ते में देखा जाए रुपए की कदर में 3.16% की कमी रिकॉर्ड की गई है और नई हुकूमत आने के बाद अब तक इंटरबैंक में डॉलर 26 रुपए 74 पैसे महंगा हो गया। 2 माह में डॉलर देखा जाए 182 रुपए 1 पैसे से बढ़कर 208 रुपए 75 पैसे पर पहुंच गया। 2 माह में देखा जाए जो इम्पैक्ट है कि 26 रुपए डॉलर जो महंगा हुआ है तो पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जे के बोझ में 3,400 अरब रुपए का इजाफा हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 9 रुपए महंगा होकर 212 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। यूरो 7 रुपए महंगा होकर 223 रुपए, बरतानी पाउंड 5.5 रुपए महंगा होकर 260 रुपए और इमारती दरम 2 रुपए 20 पैसे महंगा होकर 57 रुपए 80 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। सऊदी रियाल भी 2 रुपए 20 पैसे महंगा होकर 56 रुपए 30 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर ने बरामदात के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मई 2021 के मुकाबले मई 2022 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 56% इजाफे से 1 अरब 64 करोड़ डॉलर रही। रवा माली साल 11 माह में टेक्सटाइल की बरामदात ने 28% इजाफे से 17 अरब 62 करोड़ डॉलर की बरामदात का नया रिकॉर्ड बना डाला। पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर फिर से फलने फूलने लगा। बरामदात ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुज़िश्ता साल मई के मुकाबले रवा साल मई में टेक्सटाइल बरामदात 56% रिकॉर्ड इजाफे से 1 अरब 64 करोड़ डॉलर रही। मई 2021 में टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 5 करोड़ 20 लाख डॉलर रही थी। टेक्सटाइल सेक्टर की जारी रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के 11 माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो 17 अरब 62 करोड़ डॉलर की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गयी। गुज़िश्ता माली साल 11 माह में टेक्सटाइल बरामदात 13 अरब 74 करोड़ डॉलर थी। बरामद कुनगान का कहना है कि PTI हुकूमत ने टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत DATL की बड़ी रकम की अदायगी की थी, जिससे बरामदात बढ़ी। अब नई हुकूमत ने साबका हुकूमत के TADL की अदायगी को रोक दिया है, जिससे टेक्सटाइल बरामदात शदीद मुतासर होने का खदशा है। ये गवर्नमेंट आई, यहाँ चार्टर्ड ऑफ उसकी बात करते हैं ये लोग इकोनॉमी की। अब उन्होंने क्या किया, बोला कि उन्होंने अनाउंस किया तो इसलिए हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर ये उसको कंटिन्यू रखते और उसके अच्छे रिजल्ट थे, जो उनकी पॉलिसी में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट बढ़ी, तो इसका मतलब ये है कि उनकी पॉलिसी सही थी। बरामद कुनगान का कहना है कि बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद पैदावारी लागत बढ़ने से अब रीजनल ममालिक से मुसाबिकत मुश्किल तरीन हो गई है। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ अशरफ खान, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में अवामी थिएटर फेस्टिवल जारी है। 7 जुलाई तक जारी रहने वाले मेले में 26 ड्रामे उर्दू, सिंधी, बलोची, सराइकी, पंजाबी और पश्तो जबान में पेश किए जाएंगे। हमारे नुमाइंदे वाजिद रजा अस्फहानी इस वक्त वहाँ ड्रामा पैकरे मोहब्बत की रिहर्सल पर मौजूद हैं और इसके डायरेक्टर अजनबी से बात कर रही हैं। जी वाजिद, आगाह कीजिए। इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल में और यहाँ पे अवामी थिएटर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया और इस वक्त ड्रामा पैकरे मोहब्बत की रिहर्सल जारी है और इस ड्रामे की जो डायरेक्टर हैं अजनबी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस ड्रामे की थीम क्या है। ज़रा इस ड्रामे के बारे में हमें कुछ बताएँ। जी, पैकरे मोहब्बत, जैसा कि इस लफ्ज़ से एक ही हस्ती जहन में आती है, माँ। ये ड्रामा माँ की अज़मत के ऊपर है कि माँ की जो ममता है, चाहे औलाद उसकी जितनी भी नाखलफ हो जाए, नाफरमान हो जाए, वो अपनी ममता से मजबूर होकर अपनी औलाद के ख़िलाफ़ ना तो बद्दुआ देती है, ना ही उसे छोड़ सकती है। ये मुख्तसरन मैंने बताया है, बड़ा एक इमोशनल और जज्बाती ये ड्रामा है
तो देखने वाले यकीनी तौर पर इसको दिल पे महसूस करेंगे। कौन कौन से आर्टिस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, कुछ नाम बताएंगे? इसमें हमारे जो मेन कैरेक्टर माँ का कैरेक्टर अदा कर रही हैं बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं, वर्सटाइल अदाकारा हैं, शानजे हैं, हम्माद गनी हैं, 2 चाइल्ड आर्टिस्ट हैं इसमें, लीज़ा और फुजैल, और एक कैरेक्टर मैं खुद भी कर रहा हूँ इसमें। कितनी देर का प्ले होगा और कुछ ज़रा ड्रामा फेस्टिवल के बारे में बताएं। जी, मेरा प्ले तकरीबन 1.5 घंटे का होगा। अच्छा, अवामी थिएटर फेस्टिवल जो है 3रा फेस्टिवल है ये आर्ट्स काउंसिल में, पिछले कई सालों में काफ़ी कामयाबी से मुनक्किद हुए हैं और इस बार भी अभी हुए हैं। तो इसके पीछे जो सहरा जाता है अहमद शाह साहब का, जो कि सदर हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के, हमेशा फ़नकारों की वो दिलजोई करते हैं और उनके लिए मौक़े निकालते हैं। तो ये भी एक मौका निकाला है उन्होंने, और इस फेस्टिवल में 26 ड्रामे पेश किए जाएंगे। 16 जून से शुरू हो चुका है, 7 जुलाई तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। आपने अजमी की बात सुनी, जो ड्रामा पैकरे मोहब्बत के डायरेक्टर भी हैं, बता रहे थे कि इस अवामी थिएटर फेस्टिवल में जो इनका ड्रामा है वो बेस करता है माँ की स्टोरी पर, और 26 जून को जो है इनका ड्रामा ये पेश किया जाएगा। शुक्रिया वाजिद।